Hello and welcome my dear students to this bright morning. I hope you're all doing really fine. Today we are going to discuss a presentation on the chapter complex numbers. Basically we will be discussing all the questions that have been asked in JEE Advanced, the good level questions basically. So I hope you really enjoy this video because we have tried to give you the entire idea of what is being asked in the past 10 years. Alright, so let's get started with this chapter complex number. Question number 1 is the question which says that PQ and PR are two infinite rays and QAR is an arc. So actually these are the two infinite rays. This point is minus 1 comma 0 and this point is 1 comma 0 and these are the and this is the origin. This point is the origin 0. This point is point A. Okay, and this is point Q. QAR is an arc. This is an arc whose coordinates are given to us. The coordinates of this point is minus 1 plus root 2, comma root 2, and the coordinates of this point are minus 1 plus root 2, comma root 2, comma minus root 2 of course, क्योंकि नीचे आ गए हैं. Okay. And then we have this point is minus 1 0. I have already written it, so let me just once again write it in a better way. This point is 1 0. All right, so you have to find out if you are given that your Z is in this shaded area, okay, and you are supposed to now PQ, and let's read the PQ and PR are two infinite rays and QAR is an arc as you can see. The set of the points lying in the shaded region excluding the boundary. अब हमने बाउंड्री नहीं लेनी है, सिर्फ shaded region को कंसिडर करना है. तो वो Z के बारे में आपसे क्या पूछना चाहते हैं? They want you to find out. Option A is Z such that Z plus 1 is greater than 2. What is the meaning of Z plus 1 greater than 2? It simply means that this distance of Z from minus 1 is greater than 2. Secondly, make a correction here, it's pi by 4. Secondly, they are asking you whether argument of z plus 1 ये देखो दिया हुआ है mod, तो mod जो है वो minus pi by 4 से लेकर pi by 4 तक लाई कर रहा है या नहीं. अब हम इसके ऊपर बात करेंगे. सबसे पहली बात है कि हमारे पास z यहाँ पे कहीं है एक्सक्लूडिंग द बाउंड्री, तो हमें ये बाउंड्री नहीं लेनी है, इसके अंदर अंदर लेना है. सो ये बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z, पहले तो हम डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं कि डिस्टेंस ऑफ z प्लस 1 क्या ग्रेटर देन 2 है. अगर आप ध्यान से देखो कि ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस जो है वो 2 है. दिस डिस्टेंस इज 2. ऑलराइट, ये पूरा डिस्टेंस 2 है, तो जो z है वो इस बाउंड्री में है, तो सर्टेनली z का डिस्टेंस 2 से ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस 2 है, तो ऑब्वियसली बात है कि z का डिस्टेंस इससे दूर है, यहाँ कहीं पे भी होगा इधर, तो ऑटोमेटिकली अगर ये इतना डिस्टेंस 2 है और ये आर्क ऑफ द सर्कल है, तो यहाँ पे कहीं जाके उससे ज्यादा डिस्टेंस ही बना रहा होगा. सो सर्टेनली आई हैव दैट दिस इज करेक्ट ऑप्शन. ओके, एंड देन यू हैव आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 इज लाइंग बिटवीन माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4. मतलब z प्लस 1 वी आर टॉकिंग अबाउट, अगर हम इस रे के बारे में बात करें, फॉर एग्जाम्पल z, वैसे तो z को बाउंड्री पे लेना नहीं है, अज्यूम कर लो z इज ओवर हियर, तो मान लेते हैं इस बाउंड्री पे है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस 1 मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट होगा वो माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4 में लाई करेगा. मतलब ये एंगल क्या होगा हमें ये बताना है. ओके, अगर हमारे पास z ये है तो आर्ग्यूमेंट ये होगा, यहाँ पे है तो आर्ग्यूमेंट ये होगा. ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि आर्ग्यूमेंट क्या होगा. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. अब हमारे पास आर्ग्यूमेंट के बारे में बात आई है, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ये वाला एंगल इवैल्यूएट कर लेते हैं, एग्जैक्टली पूरा एंगल कितना है. उसके लिए मैं PQ और PR की स्लोप लूंगी, तो m ऑफ PQ कितना हो जाएगा. What is the slope of PQ? Slope of the PQ would be root 2 upon root 2 minus 1 plus 1. So it's 1. Similarly, m of PR कितना होगा. m of PR would be minus root 2 upon minus 1 plus root 2 plus 1. That is minus 1. So इसका मतलब हो गया m of PQ into m of PR is equals to minus 1. Hence these are perpendicular to each other. So the angle is 90 degree. अब क्योंकि आपकी फिगर सिमेट्रिकल है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि आपकी फिगर सिमेट्रिकल है. तो इसका मतलब अगर हम आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, अगर z यहाँ है तो उसका आर्ग्यूमेंट जो है वो लेस देन पाई बाय 4 होगा, है ना, और अगर यहाँ है तो उसका आर्ग्यूमेंट लेस देन माइनस पाई बाय 4 होगा. सो बेसिकली इट विल ग्रेटर देन माइनस पाई बाय 4 होगा. सो इट विल लाई बिटवीन माइनस पाई बाय 4 से पाई बाय 4,
क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे -45 डिग्री, क्लॉकवाइज में नीचे -45 डिग्री होगा। सो जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है या इधर होगा पूरा एग्जैक्टली अगर z यहाँ पे हुआ जो कि हमें बाउंड्री पे नहीं लेना तो आर्ग्यूमेंट π/4 आ रहा है, ठीक है। और अगर एग्जैक्टली इस बाउंड्री पे हुआ तो आर्ग्यूमेंट -π/4 आ रहा है, लेकिन बाउंड्री पे नहीं लेना, उसके बीच में लाई करेगा। सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 फ्लक्चुएट्स बिटवीन -π/4 टू π/4, हेंस दिस ऑप्शन ए इज कंप्लीटली करेक्ट। कमिंग टू द ऑप्शन नंबर 2, z+1 इज लेस देन 2। देखो ये तो अगर ये चीज है तो ये तो बिल्कुल उसकी उल्टी चीज लिखी हुई है, तो सर्टेनली दिस इज इनकरेक्ट, ठीक है। नाउ कमिंग टू दिस वन कि मॉड ऑफ z-1 इज ग्रेटर देन 2, z का डिस्टेंस फ्रॉम 1। अगर हमने ये निकाला कि z का डिस्टेंस यहां से 2 से बड़ा है तो यहां से तो सर्टेनली 2 से बड़ा होने का कोई पॉइंट ही नहीं है। अगर हमारे पास ये यहां पे है तो सर्टेनली z इज इन दिस शेडेड रीजन, सो सर्टेनली इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। आपको दिख सकता है, आप यू कैन फाइंड दिस आउट विद ऑन योर ओन विद द हेल्प ऑफ द फिगर। तो ऑब्वियसली ये चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी कि z-1 डिस्टेंस ऑफ z from 1 is greater than 2, that is not the case and you can see that diagrammatically as well। आप देख सकते हो diagrammatically कि this is not happening, alright। if I give you the entire diagram जो हमारा था, इसमें भी आप देख सकते हो कि ये this is not true, as you can see कि ये distance 2 है तो यहाँ पे तो distance 2 बना ही नहीं सकता ना, hence this is also incorrect। coming to the fourth option, distance of z-1 is less than 2, हाँ ये true है। Argument of z-1 is less than π/2। Now coming to the argument, argument of z-1, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास पॉइंट था 1,0। अगर हम इस आर्ग्यूमेंट के बारे में बात करें तो ये बोल रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इज लेस देन, द आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 इज लेस देन π/2। इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रही है। विल दैट बी सो? क्या आर्ग्यूमेंट ऑफ z-1 -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगी? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए अगर हम इफ यू फाइंड आउट दिस एंगल वी विल सी, क्योंकि हमारे पास -90 से 90 में तो बहुत सारे एंगल आ जाएंगे, -78 भी आ जाएगा, -60 भी आ जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो -π/2 से π/2 में लाई कर रहा है। तो दिस विल ऑल्सो बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट for us to say। So the correct statement would be statement number 1, which is option A। Or because nothing can be said as the data given, nothing can be said about the argument from here, so we can't really comment on that। So therefore option A is the most apt and hence the correct option। Coming to the question number 2, a man walks a distance of 3 units from the origin। Now let's start with this question, question number 2। While I जब तक मैं ये बोर्ड नीट कर रही हूँ आप इसको क्वेश्चन को पढ़िए और सोचिए क्या बात कर रहा है वो क्वेश्चन में। एक there's this man, he walks a distance of 3 units from the origin towards northeast। So let's just first of all make this diagram। एक मैन है वो चल रहा है distance of 3 units from the origin towards northeast। this is northeast। कितना चला है वो? 3 units distance। ओके फाइन। फिर उसके बाद कितना चला है? फ्रॉम देयर 45 डिग्री उन्होंने मेंशन किया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट मतलब 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। नाउ फ्रॉम देयर ही वॉक्स अ डिस्टेंस ऑफ 4 यूनिट्स टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब हमें पता है ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। आई नो ऑब्वियसली दिस इज नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाली डायरेक्शन होती है, नॉर्थ वेस्ट इज दिस डायरेक्शन, है ना, 45 डिग्री एग्जैक्टली बिल्कुल बीच में। तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे पॉइंट है तो इस डायरेक्शन के पैरेलल चलेगा, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी 4 यूनिट्स वो नॉर्थ वेस्ट चलता है। ओके अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? सो हम लोगों को ये क्वेश्चन बोला कि हम लोगों को ये बोल रहे हैं कि ये 4 यूनिट्स नॉर्थ वेस्ट चल रहा है। तो अब आपको क्या करना है? टू रीच अ पॉइंट P, दिस इज पॉइंट P लेट्स से, देन द पोजीशन ऑफ P, हमें पोजीशन ऑफ P निकालनी है। अब अगर ये 3 है ये 4 है, ये आपको पता होगा ये 90 डिग्री है, बोल सकती हूँ मैं इसको 90 डिग्री, क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया है। ही हैज गॉन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू नॉर्थ वेस्ट, सो दैट इज वाई इसके पैरेलल मतलब बेसिकली। तो इसका एंगल अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि ये एंगल 90 डिग्री कैसे आया, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये 45 है तो ये भी 45 है, और ये भी एग्जैक्टली 45 डिग्री के उस पर चलेगा, तो ये एंगल कितना हो गया 90, क्योंकि ये पैरेलल है तो ये भी 90, ठीक है। तो इसके मतलब ये हो जाएगा 90। आई होप यू आर क्लियर विद इट व्हाई दिस विल बी 90। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपको पॉइंट P की जो न्यू पोजीशन निकालनी है वो क्या होगी। ओके, so I have to find out the position of point P in the Argand plane। Now there are 2 methods of doing this question। One is by standard कि आप normally निकालो, अगर ये 45 डिग्री है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे
3e⁻∗π/4, ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर z। r e⁻∗θ होता है तो ये हो जाएगा e3e⁻∗π/4। फिर उसके बाद ये 4 यूनिट चला है तो हमें इसकी न्यू पोजीशन निकालनी है। अब अगर मैं यहाँ पे रोटेशन थ्योरम लगा दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा, लेट अस अज्यूम द पॉइंट पोजीशन p इज z, सो लेट्स अप्लाई रोटेशन थ्योरम। इसके अबाउट रोटेट हो रहा है और 90 डिग्री एंगल है, सो ऑन अप्लाइंग रोटेशन थ्योरम आई विल हैव z माइनस 3e⁻∗π/4 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 3e⁻∗π/4। तो मेरी फाइनल पोजीशन क्या है, ये है, तो ये रोटेशन हो रही है मेरी, एंड दिस इज व्हाट काइंड ऑफ रोटेशन, एज यू कैन सी दिस इज क्लॉकवाइज रोटेशन। सो इसका मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, मॉड ऑफ दिस इज, व्हाट इज मॉड ऑफ दिस, हमने कैसे रोटेट किया, हमने इसके अराउंड रोटेशन की है, तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर है, दिस मॉड ऑफ दिस इज 4, सो 4 अपॉन मॉड ऑफ दिस इज 3, कितने से रोटेशन हुई है, 90 डिग्री से, तो हम उसके लिए सीधा आयोटा लिख देंगे, e⁻∗π/2 लिखेंगे तो दैट इज आयोटा ओनली, तो मैंने डायरेक्टली आयोटा लिख दिया, ठीक है, विद अ नेगेटिव साइन, वाई, बिकॉज क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, और मैंने आपको बताया था रोटेशन थ्योरम में कि क्लॉकवाइज रोटेशन पे यू हैव टू पुट अ नेगेटिव साइन, ठीक है, हैव यू अंडरस्टूड दिस। नाउ आई विल हैव 7 माइनस 3e⁻∗π/4 अपॉन माइनस 3e⁻∗π/4 is equals to minus 4/3 iota. Now this negative and this negative will get cancelled, this 3 will get 3 cancel with this 3, है ना, तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस 3e⁻∗π/4 is equals to 4 iota e⁻∗π/4। अब z इसको उधर भेजो, z is equals to 3 plus 4 iota e⁻∗π/4 क्या हो जाएगा, कॉमन, तो हेंस दिस इज माई आंसर। तो कौन सी ऑप्शन हो गई, 3 plus 4 iota e⁻∗π/4। दिस वॉज one method of doing it which is completely all right and it's not taking any of the time, but let me discuss the second method with you as well, जिसमें हम ज्योमेट्री का यूज करेंगे, थोड़ा सा हम टेक्निक यूज करेंगे रोटेशन की। अब आप ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को अगर मैं ऐसे करूं, मैंने इसको 45 डिग्री से रोटेट किया है, लेकिन मैं बोलूं मैंने रोटेट नहीं करना, मैंने वापस आ जाना है, तो ये डायग्राम कैसा बन जाएगा, ये डायग्राम बन जाएगा 3 यूनिट्स यहाँ और 4 यूनिट्स यहाँ सीधा। अब ये मेरी पोजीशन ऑफ z हो जाएगी, तो अगर आप ध्यान से देखो, दिस इज 3 यूनिट्स, दिस इज 4 यूनिट्स एंड दिस वुड बी सर्टेनली 5, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या नाम हो जाएगा, 3 plus 4 iota। अगर मैं इस पूरे को यहाँ पे ओवरलैप करवा दूं एक्स एक्सिस के साथ, तो ये 3 और 4 हो जाएगा, तो 3 plus 4 iota इस कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम है, तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का यहाँ नाम 3 plus 4 iota हो गया। लेकिन आपको तो ये बेसिकली आपने तो इसको नीचे लाया, लेकिन आपको उसको रोटेट कितने एंगल से करना था, π/4 से, तो आप वापस इसको रोटेट कर दो, तो ये मल्टीप्लाई कर दो e⁻∗π/4 एंड दैट्स योर क्वेश्चन। सो यहाँ पे शायद आपने 1 मिनट लगाया भी, लेकिन ये क्वेश्चन तो शायद 10 सेकेंड्स में हो गया। सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि अगर वहाँ आपका ब्रेन चलता है और आप ऐसे करके क्वेश्चन कर सकते हो तो आपका कितना टाइम सेव हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। देखो मेरे को कोई वो नहीं है कि मैं आपसे ये अप्रोच डिस्कस करूँ, बट आप ये सोचो कि इट इज़ हमें कैसे पता चलता है कि ये भी तरीका है, जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं, उसको सीखते हैं। तो अगर आप ये सीखोगे तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ थिंकिंग अ क्वेश्चन। ऑलराइट, तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ से ओवरलैप कर दिया, मैं 45 डिग्री से नीचे ले आई, तो उससे मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता चलेंगे 3 plus 4 iota। फिर क्योंकि मुझे 45 डिग्री से मैं अपने आप नीचे लेके आऊँगा, तो उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके जाओ, 45 डिग्री से रोटेट करो, तो रोटेट करने पे ये बन गया e⁻3 plus 4 iota into e⁻∗π/4, which is a shortcut to do this question just like that. So I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी तो नॉर्मल रोटेशन थ्योरम का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, बट आई रियली लाइक दिस क्वेश्चन क्योंकि इसको करने में काफ़ी मज़ा आता है और इसमें एक शॉर्टकट भी बड़ा इन्वॉल्व होता है। सो आगे चलते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। द क्वेश्चन नंबर 3 सेज दैट अ पार्टिकल P स्टार्ट्स फ्रॉम द पोजिशन Z0 1 plus 2 iota। अब दोबारा से हम करते हैं, 1,2 पोजिशन है पार्टिकल की, दिस इज 1 एंड दिस इज लेट्स से 2। सो ये है पोजिशन पार्टिकल की, 1,2 पोजिशन पे चलता है, ठीक है। मूव्स फर्स्ट हॉरिजॉन्टली अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो पहले हॉरिजॉन्टली चला 5 यूनिट से, तो अगर 5 यूनिट से हॉरिजॉन्टली चला तो हमारे पास कितना मूव कर गया, 6,2 हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स,
1 + 5 y तो सेम ही है। उसके बाद वो वर्टिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब देखो बार बार अवे फ्रॉम द ओरिजिन मतलब आप यहाँ पे भी तो आ सकते हो लेकिन आपको दूर जाना है। सो 3 यूनिट्स वर्टिकली अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो पॉइंट हो गया 6,5। इसी तरीके का एक क्वेश्चन हमने मेंस में भी डिस्कस किया था, पर वो थोड़ा इजी था, ये थोड़ा उससे एक लेवल आगे है, इसलिए मैं इसको एडवांस में डिस्कस कर रही हूँ। सो दिस इज 6,5 एंड टू रीच अ पॉइंट Z1, तो इस पॉइंट का नाम हो गया है Z1, जो हमने निकाल भी लिया साथ साथ में। ऑलराइट, फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I + Z। नाउ वेक्टर I + Z क्या होगा, जो ये हो जाएगा वेक्टर 1,1। अब यहां से ये वेक्टर I + Z की, ये 6,Z ऐसे ले लेते, 5 ऐसे ले लेते हैं, ये वेक्टर I + Z की डायरेक्शन में इट इज मूविंग √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ, मतलब √2 यूनिट्स ये मूव कर देता है। बेसिकली उन्होंने क्यों बोला I + Z की डायरेक्शन, मतलब वो बेसिकली मेकिंग एन एंगल, दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, सो दिस इज आल्सो मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। दिस इज व्हाट दे वांट टू सजेस्ट, ओके। एंड देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद ये π/2 एंगल से मूव करा, उस π/2 एंगल से मूव करना मतलब आयोटा से मल्टीप्लाई करना सिंपली, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। टू रीच डायरेक्शन ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन टू रीच अ पॉइंट Z2, सेंटर ओरिजिन है तो हमारे पास वो π/2 से मूव कर गया टू रीच अ पॉइंट, किसके अबाउट, ओरिजिन के अबाउट, विद द सेंटर ओरिजिन। अब हमारे सबसे पहले हमने जो √2 यूनिट्स उसको आगे मूव कराया उसके बारे में बात करेंगे कि ये Z1 था, मैं यहां पे दोबारा बनाती हूँ, Z1 है 6,5 और Z1 से वो I + J की डायरेक्शन में, I + J ऐसे है तो वो भी उसी की डायरेक्शन में वेक्टर I + J, देखो उन्होंने वेक्टर भी यूज कर लिया, I + J की डायरेक्शन में उन्होंने मतलब 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल बनाता हुआ वो चला है √2 यूनिट्स ना। अब मुझे इस पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे, तभी तो मैं उसको ओरिजिन के अबाउट रोटेट करूंगी 90 डिग्री से, क्योंकि उसने बोला है कि फ्रॉम Z1 द पार्टिकल मूव्स √2 यूनिट्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर I + J, देन इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ π/2 इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन टू रीच अ पॉइंट Z2, देन पॉइंट Z2 इज गिवन बाय। सो अब पहले आप ये वाला पॉइंट इवैल्यूएट कर लो। हमें एक पॉइंट पता है इस लाइन के ऊपर, स्लोप पता है 45 डिग्री, सो y इज इक्वल्स टू mx + c, m इज 45 डिग्री, सो x + c, सो c की वैल्यू निकालो, y है 5, x है 6, सो c इज नथिंग बट -1, सो योर लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन y इज इक्वल्स टू x - 1। आई डोंट थिंक वैसे इसकी रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम क्यों निकाल रहे हैं मुझे भी नहीं पता, आई जस्ट वेस्टेड योर टाइम, वी डोंट नीड इट। हमें कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स ऑफ दिस, we want to find out the coordinates of this point, simply apply parametric form, you know the distance, you know the slope, so parametric form कैसे लगाएंगे, x - 6 upon 1/√2, y - 5 upon 1/√2 is equals to प्लस माइनस कितना डिस्टेंस चला है, √2, तो आ जाएगा x - 6 is equals to +-1, क्योंकि 1/√2 into √2, and x - 5 is also equal to +-1, so x is equals to 6 +-1, x is equals to 5 +-1। बट क्योंकि आप देख रहे हो कि ये आगे बढ़ रहा है, एज यू कैन सी इट्स गोइंग फर्दर, तो हम माइनस वाला रिजेक्ट करके प्लस ले लेंगे, तो ये आएगा 7 y है यहाँ पे, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 6, सो द पॉइंट वुड बी, अगर हम माइनस करते तो आता 5 4, पर हम आगे बढ़ रहे हैं तो इसलिए दिस पॉइंट विल बी, जो पॉइंट है दैट वुड बी 7,6। Okay, so now it had reached a point 7,6 from where it moves through an angle of π/2 in anti-clockwise direction on a circle. अब वो 7,6 पे पहुंच गया यहाँ पे। Now it moves through an angle of π/2 in the anti-clockwise direction on a circle with center origin. अब ये एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है, वहां पे उसने 90 डिग्री के एंगल से मूव किया, ठीक है। तो अगर ये कोई भी हमें पता है कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 90 डिग्री के एंगल से ओरिजिन से ले रहे हैं ना, एंगल ओरिजिन के अबाउट घुमा रहे हैं, तो कोई भी एंगल अगर कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 90 डिग्री के एंगल से रोटेट करता है, मैंने आपको बताया जैसे हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z, इट मूव्स थ्रू एन एंगल ऑफ, अब मैं ये बोल क्या रहा है कि सर्कल का सेंटर ये है, उसके अबाउट इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने मान लेते हैं हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है 7,6। नाउ let's read the question once again. It says that then it moves through an angle of π/2 in the anti-clockwise direction on a circle with center at origin. Now on a circle with center at origin मतलब हमने सर्कल के अबाउट
इसको घुमा दिया कितने एंगल से, π/2 से। सेंटर ओरिजिन है तो ऑब्वियसली ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो इसीलिए जब ऐसा हो कि हम z को रोटेट कर रहे हैं एंड दिस z इज रोटेटेड एंड दिस एंगल दिस लेंथ रिमेन्स द सेम, सो मैं क्या करती हूँ, एक शॉर्टकट है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देती हूँ उसको आयोटा से। यहाँ पे वैसे तो मुझे मैं अज्यूम करूँ कि आपको रिजल्ट सारे आते हैं, बट फिर भी मैं साथ साथ में बताती जाती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सो मैंने क्या किया, इसको किससे रोटेट कर दिया, बाय द एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हमने इसका मतलब सिंपली क्या करना है, इसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है। तो 7 + 6 आयोटा में, सो आई विल मल्टीप्लाई आयोटा इन 7 + 6 आयोटा। तो 7 + 6 आयोटा में जब मैंने आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आएगा, 7 आयोटा - 6। So finally the complex number which I get is 7 iota - 6. Let's find out the answer. So my answer is option D, -6 + 7 iota. I hope you are clear with this question. मुझे पता है स्टूडेंट्स को सब समझ में आ जाता है, वो ये भी समझ जाते हैं, ये भी समझ जाते हैं, फिर वेक्टर के अलॉन्ग √2 यूनिट समझ जाते हैं, पैरामीट्रिक फॉर्म लगानी भी उनको आ जाती है। कंफ्यूजन का है कि ओरिजिन के अबाउट, वो आपको ये समझना है वो ओरिजिन के अबाउट एंगल 90 डिग्री से मूव कर रहा है, तो आपको मैं उसको आयोटा मल्टीप्लाई कर देना है। एंटी क्लॉकवाइज बोला इसलिए आयोटा, नहीं तो माइनस आयोटा मल्टीप्लाई करती। सो सिंपल था क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ी सी हम लोगों को अच्छे से डायग्राम बना के इसको करना था क्वेश्चन को। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ starting with question number 4, I have z आपको दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द वैल्यू ऑफ इमेजिनरी z 2m - 1 एट थीटा इक्वल टू 2 डिग्री इज। z 2m - 1 का क्या मतलब है, आप यहाँ पे m की समेशन लिया हुआ है, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 करेंगे तो z1, z3, z5 और 15 पर करेंगे तो z29 आ जाएगा। सो इसका आपको क्या निकालना है, इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना। अगर आप z की वैल्यू cos थीटा + आयोटा sin थीटा, तो ये हो जाएगा cos थीटा + आयोटा sin थीटा। ठीक है, सिमिलरली z³ डी मोरविस थ्योरम से हमें पता है कि 3 आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा cos 3 थीटा + आयोटा sin 3 थीटा प्लस सो ऑन cos 29 थीटा + आयोटा sin 29 थीटा। ओके, नाउ दैट आई हैव दिस, इमेजिनरी पार्ट लेना है इसका, तो इमेजिनरी पार्ट कितना हो जाएगा, sin थीटा प्लस रियल पार्ट को तो आप छोड़ ही दो, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ओके ओके, नाउ अब आपको एक बात बता दूं, हमने एक सीरीज की होती है कि जब भी एंगल साइन में एपी में होते हैं तो वो सीरीज क्या होती है कि साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस डी प्लस साइन ऑफ सो ऑन ए प्लस व्हाटएवर एन डी। तो इसका आंसर कितना होता है, साइन ऑफ ए प्लस n-1 d/2 साइन एन d/2 एंड इंटू साइन d/2। तो अगर हमारे पास साइन की सीरीज लिखी होती है इस तरीके से, इफ यू हैव अ सीरीज ऑफ साइन, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी का आंसर क्या आएगा, साइन ऑफ ए प्लस ए n-1, n कितना है यहाँ पे, हम 15 तक गए हैं ना, दिस वॉज 15, n-1 दैट इज 14 d/2, d कितना है यहाँ पे, थीटा 3 थीटा, d कितना डिफरेंस एंगल में 2 थीटा, तो d/2 कितना हो जाएगा, थीटा। आई होप ये क्लियर विद दिस, ये तो हमने बहुत बार यूज किया हुआ 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। साइन d/2, d कितना है, कितना विच के एंगल 2 थीटा, 2 थीटा/2 इज थीटा, n d/2 सॉरी 15 थीटा मतलब, क्योंकि n भी तो है, अपॉन साइन थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, दिस विल बी साइन स्क्वायर 15 थीटा अपॉन साइन थीटा। और आपको क्या बोला है, थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 डिग्री, तो पुट करो 2 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन साइन 2 डिग्री, एंड व्हाट इज साइन 30, 1/2, सो 1/4 इंटू साइन 2 डिग्री इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, सो दिस इज ऑप्शन डी। अगर एडवांस
के लिंक्ड बात की जाए तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, मतलब आपको सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था इस क्वेश्चन को करने के लिए। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है आपसे ये क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएगा, कुछ खास बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? जस्ट रीड आउट दिस क्वेश्चन व्हाइल आई जस्ट क्लियर द बोर्ड। ओमेगा दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर √3/2 P is a set which has a complex number of the form omega n, as in omega n मतलब n की वैल्यू 1 2 3 so on, n कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 मतलब कहीं तक जाता है, हमें पता नहीं है कि n की वैल्यू कहाँ तक जा रही है। सो इट कैन बी ओमेगा 1, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, एंड माइंड यू ओमेगा इज नॉट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, उसकी वैल्यू ये दी हुई है आपको। हाँ, आप इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में लिख जरूर सकते हो। फर्दर H1 इज द कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट ऑफ Z इज ग्रेटर देन हाफ। जैसे कि अगर आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करो, इसमें √3/2 रियल पार्ट है विच इज ग्रेटर देन हाफ फॉर श्योर, क्योंकि √3 1 से बड़ा है, नीचे वाला सेम ही है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर इस सेट के अंदर आ जाएगा। इन द सिमिलर वे H2 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल पार्ट ऑफ Z इज लेस देन -हाफ। ठीक है, H2 पहले ये क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। रियल पार्ट ऑफ Z इसमें हाफ से बड़ा है, इसमें रियल पार्ट ऑफ Z -हाफ से छोटा है। Where C is a set of complex number, अगर Z1 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो जो इसमें से निकला हुआ है, P इंटरसेक्शन Z1 मतलब ये जो सारे सेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे उनमें और इसमें जो कॉमन होगा, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से आएंगे, एक तो ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा क्यूब आ गया, ठीक है, ओमेगा 4, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे। अब P हमें Z1 P इंटरसेक्शन H1 में होना है, मतलब जो P में भी हो और H1 में भी हो। जैसे कि ओमेगा H1 में भी है, P में है, तो P इंटरसेक्शन H1 में एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया वो ओमेगा आ गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? ठीक है, सिमिलरली उसके बाद है H2 में है रियल पार्ट ऑफ Z -हाफ, तो आपको Z2 एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो P इंटरसेक्शन Z2 में है, एंड O रिप्रेजेंट्स द ओरिजिन। तो एंगल Z1 O Z2 क्या हो सकता है? दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। अब अगर आप इसको ऐसे इवैल्यूएट करने लग जाओ कि आप, कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसमें इसको ओमेगा है ना, इसमें आयोटा कॉमन निकाल दिया तो कितना आ जाएगा √3, अगर आपने आयोटा कॉमन निकाला माइनस आयोटा √3 आ जाएगा +1/2, तो आपके पास आएगा 1 माइनस आयोटा √3/2, और फिर उसमें से माइनस कॉमन निकाले तो आ जाएगा माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा √3/2। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के फॉर्म में लिखूँ तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा ओमेगा। सो ये जो है ओमेगा माइनस आयोटा ओमेगा नॉट लिख लेते हैं फॉर एग्जांपल, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है वो। तो कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, फिर आप उसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1, तो माइनस माइनस प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, नहीं आयोटा स्क्वायर, ये तो माइनस माइनस प्लस ही हो गया, आयोटा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर आ गया, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर आपको पता है क्या होता है, तो वो ऐसा कुछ करते जाएंगे और दोबारा से इसी का क्यूब करेंगे तो आयोटा क्यूब विच इज, और ओमेगा नॉट क्यूब आ गया, एंड व्हाट इज आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब वी कैन इवैल्यूएट, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा एंड प्लस एक माइनस साइन है तो प्लस आयोटा ओमेगा नॉट क्यूब। सो और ओमेगा नॉट क्यूब 1 होता है तो सिर्फ आयोटा आ गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो समझे, कुछ स्टूडेंट ऐसे करने की कोशिश करेंगे, आप ऐसे करो या वैसे करो, लेकिन हमें इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी हम एंगल निकाल सकेंगे। सो लेट्स मेक अ डायग्राम एंड फाइंड आउट कि आपके क्या क्या यहाँ पे बनेंगे। सो लेट्स मेक अ डायग्राम फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले बात करते हैं P में कैसे कैसे एलिमेंट्स हैं। P के एलिमेंट्स को हम उसमें आर्गेंट प्लेन में बनाते हैं। तो पहला एलिमेंट है √3/2 1/2, तो √3/2 1/2 यहाँ कहीं लाया करेगा, √3/2 एंड 1/2। सो दिस इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, √3/2 यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, √3/2 1/2, ओके, एंड द एंगल ओवर हियर इज, कितना एंगल बना रहा है √3/2 1/2 आप निकाल सकते हो, 1/√3 दैट इज π/6, है ना। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा ओमेगा स्क्वायर्ड, तो ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा π/6 है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा
2 आर्ग्यूमेंट ऑफ ओमेगा दैट इज 2 π/6 है ना। तो इसका मतलब एक π/6 और लगाओ तो आ जाएगा हमारे पास ओमेगा स्क्वायर। फिर एक π/6 और लगाएंगे तो मैंने एक पाई थोड़ा और आगे कर देते हैं, एक π/6 और लगाया ओमेगा स्क्वायर आ गया, एक π/6 और लगाएंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे। 30 + 30 90 होता है। और वैसे भी मैंने निकाला था कि ये आयोटा है 0,1, अगर आप निकालने पे भी जाओ तो दिस इज आयोटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब, एंड आई एम माइंडिंग यू अगेन एंड अगेन दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ओमेगा, दिस इज नॉट द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो इसीलिए कंफ्यूज मत हो जाना। फिर एक और ओमेगा क्यूब है, फिर इसमें ओमेगा क्यूब यहां पे करते हैं, फिर आप इसमें एक और π/6 करो तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा 4, एक और π/6 करो, इसके बिल्कुल सामने बनाएंगे हम ओमेगा 4, एक और π/6 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ओमेगा 5, फिर यहां आ जाएगा ओमेगा 6। ठीक है, अब आप बोलोगे कि आप यही क्यों कर रहे हो, क्योंकि 90 डिग्री मूव कर रहे हो, तो ऑब्वियसली 1 2 3 ही कॉम्प्लेक्स नंबर लाइक करेंगे यहाँ पे, है ना, यू अंडरस्टैंड। फिर एक और चलेंगे, एक और π/6 आ गया ओमेगा 7, एंड देन यू हैव ओमेगा 8, एंड देन यू हैव ओमेगा 9। ऐसे ही यहाँ पे आएगा एक और एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आपका आ जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अब इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 10 11 12 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उन्होंने n बोला तो फिर दोबारा जो n आएगा वो यहीं पे आ जाएगा वापस, फिर से π/6 ऐड करो यहाँ पे आ जाएगा, फिर से π/6 ऐड करो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका मॉड्यूलस क्या है, इसका मॉड्यूलस क्या है 3/4 + 1/4 दैट इज 1। So basically, and the angle between all of them is π/6, π/6, π/6. So basically all of them are lying on a unit circle. All of them are lying on a unit circle for sure. अब उन्होंने बोला है, अब हम बात करते हैं H1 के बारे में। H1 वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट ऑफ Z ग्रेटर देन हाफ है। तो पहले हाफ पे हमें, हाफ जो है कहाँ पे आएगा, √3 हाफ हमारा कौन सा पॉइंट था। आई हैव टू मेक अनदर डायग्राम, आई सपोज दिस इज नॉट वेरी मच क्लियर, क्योंकि हमने हाफ यहाँ अज्यूम किया था, √3/2 1/2 ये लिया था, लेकिन उसके हिसाब से बना नहीं है हमारा डायग्राम। लेट्स मेक अ फेयर डायग्राम अगेन। सर्कल पहले बना लेते हैं हम यहाँ पे, ओके तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ हो गया, √3/2 1/2 इट्स समवेयर ओवर हियर, making an angle of π/6, and then you have omega squared, and this is omega cube, all making an angle of π/4, omega 4, omega 5, omega 6, omega 7। बस इसमें आपको एक डायग्राम बनाना है एंड योर जॉब इज डन, ढंग का। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखो, this is omega 9, and this is omega 12, and this is omega। अब हम बात करते हैं, उन्होंने बोला रियल पार्ट ऑफ Z जो है वो हाफ से बड़ा होना चाहिए, तो हाफ से बड़ा, पहले हम हाफ बनाते हैं, कहां पे आएगा, दिस इज हाफ, दिस इज हाफ, लेट्स से ये पूरा 1 है तो ये हाफ हो गया, तो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z शुड बी ग्रेटर देन हाफ। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया आपके पास ये वाला आ गया Z ओमेगा, और वो बोल रहा है रियल पार्ट ऑफ Z शुड बी लेस देन -हाफ। तो अगर ये हाफ है ये -हाफ हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z शुड बी लेस देन -हाफ। तो उसमें लेस देन -हाफ की कैटेगरी में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएंगे, ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो है लेस देन -हाफ की कैटेगरी में आ रहे हैं। किसी को कंफ्यूजन हो कि ओमेगा 4 आएगा या नहीं आएगा, आप बना के देख सकते हो, क्योंकि हमने उसको सिंप्लीफाइड वर्जन में भी बनाया था। ओमेगा क्यूब तक हम पहुंचे थे, ओमेगा 4 भी कर सकते हैं, इसका 4 करो तो कितना आ जाएगा, आयोटा 4 क्या होता है 1, सो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट 4, ऑलराइट। एंड ओमेगा नॉट 4 मतलब ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, ओमेगा क्यूब इज 1, सो ओमेगा नॉट आ गया, वो सिंपली ओमेगा नॉट। एंड व्हाट इज ओमेगा नॉट -1/2 प्लस आयोटा √3/2, तो ये -हाफ जो इसका रियल पार्ट है उससे वो करेगा, ठीक है, अंडरस्टूड। तो वो आपको दिख भी रहा है, वो कर रहा है, ओवरलैप करेगा इसको, तो वो आप देख भी सकते हो वो ओवरलैप कर रहा है, तो ये इस पॉइंट पे ही आ जाएगा,
क्योंकि हम x की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पे -½ ले रहे हैं और यहाँ पे भी x की वैल्यू हमें -½ नजर आ भी रही है। ठीक है, तो अब हमारे पास उन्होंने क्या बोला है कि P इंटरसेक्शन, अब हमारे पास P इंटरसेक्शन H1 में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाला आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका नाम रख देते हैं Z1 से, लेट्स से, क्योंकि उन्हें बोला लेट Z1 बिलोंग टू P इंटरसेक्शन 1, Z1 ये ले लिया मैंने, ये भी आ रहा है लेकिन पहले हम सिर्फ इसकी बात करते हैं, ये मैंने Z1 मान लिया। उसके अलावा H2 में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, ये आ रहा है, दिस इज कमिंग, सो ये भी आ रहा है। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास किस में आ रहे हैं, H2 इंटरसेक्शन P में आ रहे हैं। तो उन्होंने पूछा है Z1O Z2 का एंगल कितना होगा, Z1O Z2, सो लेट्स से दिस इज Z1, तो अगर इसको मैंने Z1 मान लिया तो Z1O Z2 वाला एंगल के बारे में बात करते हैं। लेट मी यूज अ डिफरेंट पेन सो दैट यू गेट अ बेटर आइडिया व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो इफ दिस इज Z1, तो एक तो कॉम्प्लेक्स नंबर मुझे सीधा दिख रहा है जिसके साथ मैंने एंगल बनाना है, ये Z1 हो गया और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये हो गया। तो आप इनका एंगल बताइए कितना होगा। हमें पता है सबके बीच में एंगल है π/6, π/6 एंड π/6, तो टोटल एंगल कितना हो गया 1 2 3 4 4 π/6, दैट इज 4 π/6 दैट इज 2 π/3। तो एक एंगल तो हो गया 2 π/3 विच इज ऑप्शन नंबर सी। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जो इस कैटेगरी में आ रहा है वो ये है, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया, ये और ये हमें क्लियरली दिख रहा है, नहीं एक ये वाला भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो 1 2 3 4 5, तो 5 π/6 भी एक एंगल हो जाएगा। सो अनदर ऑप्शन इज 5 π/6। अंडरस्टूड। अब हम आगे चलते हैं, ये वाला भी है, तो ये पूरा एंगल कितना है, ये 6 π/6 मतलब 180 डिग्री पर 180 डिग्री उसमें दिखा नहीं रहे, और ये वाला एंगल है दिस इज 7 π, तो एंगल कौन से 2 π/3, 5 π/6, पाई, 7 π/6, ये सारे एंगल बन रहे हैं, लेकिन हमारे को ऑप्शन में 2 ही एंगल गिवन है। अंडरस्टूड। तो हमने सारे एंगल इसके साथ देख लिए। अब यू अंडरस्टूड, ये भी लाई कर रहा है तो इसके साथ भी आप एंगल देख सकते हो। अगर मैं इसका और इसका एंगल देखती हूं, इसका जिसके साथ हमने सबसे पहले एंगल देखा था, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 π/6, 3 π/6, 4 π/6, 5 π/6, 6 π/6, सो पाई एंगल, तो वापस रिपीटेडली वही एंगल बन रहा है। समझ में आ रही है आपको। सिमिलरली फिर इसका इसके साथ देखेंगे तो कितना बन जाएगा 8 π/6, तो रिपीटेडली यू विल हैव द सेम एंगल, बट हमारे पास जो एक्चुअली नजर आ रहे हैं, जो एंगल हमारे बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं 2 π/3 एंड 5 π/6। सो दीज आर द करेक्ट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। होपफुली यू आर क्लियर विद इट। अंडरस्टूड। सो बेसिकली इस क्वेश्चन में आपको ये डायग्राम के ऊपर बहुत फोकस करना था कि इस डायग्राम को कैसे बनाना है। अगर आपने एक डायग्राम ढंग का बना लिया तो आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल भी, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है। सो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या क्या देखना था, आपने इसका मॉड निकाला, हमारे पास मॉड ओमेगा कितना आ गया 1 आ गया। फिर हमने ये देखा कि ये जो ओमेगा स्क्वायर करके दिए हुए हैं, तो ये जब भी ऐसा कुछ दिया होता है कि ये एक्चुअली nth रूट ऑफ यूनिटी टाइप्स बन रहे होते हैं। सो बेसिकली जब हमने देखा कि सारों के बीच में एंगल जो है वो π/6 है, तो मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है। स्टूडेंट्स वो ट्राई स्टार्ट फाइंडिंग आउट कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैंने भी किया, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा रेफरेंस के लिए। पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप वैसे भी नहीं निकाल सकते हो। सो बेटर मेक अ डायग्राम इन सच केसेस सो दैट द थिंग्स गेट मोर क्लियरर टू यू। ऑलराइट, सो वी फाउंड आउट द एंगल between them are 2 π/3 and 5/6 only. All right, so coming to the, so hopefully you are clear with it that आपको इसमें क्या क्या निकालना था, and you was सिर्फ एक ढंग का डायग्राम बना होने से आपका ये क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान हो जाता।